فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کرت امہ علاوہ چھ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال دیو اس اجازت خدا حافظ جموں کشمیر میں نئے انقلاب کی ضرورت، حلقہ انتخاب گلمرگ میں بدلاؤ کی لہر۔ آئیے 1 اکتوبر کو اپنا قیمتی ووٹ نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار فاروق احمد شاہ کو دیں۔ ترقی، عدل، انصاف کا ضامن فاروق شاہ، آئیے حلقے بٹن کو دبا کر انہیں کامیاب کریں۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بھوٹان کی طرف سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے بھارت کے دعوے کی حمایت۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جموں کشمیر کا ذکر کیے جانے پر بھارت نے دیا کرارا جواب۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی 40 اسمبلی حلقوں میں انتخابی سرگرمیوں نے پکڑ لیا زور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جموں میں ایک بھاری چناوی جلسے سے کیا خطاب، اور اڑی گام کلگام میں آج صبح حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ اس جھڑپ میں حفاظتی عملے کے 5 اہلکار ہوئے زخمی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اقوام متحدہ سلامتی کونسل UNSC میں مستقل رکنیت کے بھارت کے دعوے کی حمایت کرنے والے امریکہ اور فرانس کے لیڈران کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سٹارمر نے عالمی کثیر رخی نظام کو مزید نمائندگی والا اور مزید فعال بنانے کے لیے اصلاحات کیے جانے پر زور دیا۔ انہوں نے افریقہ، برازیل، جاپان اور جرمنی کے لیے مستقل رکنیت کی حمایت کے ساتھ ساتھ منتخب ارکان کو اور زیادہ سیٹس دیے جانے کی بھی حمایت کی۔ بھوٹان کے وزیر اعظم شرنگ توبگے نے بھی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کو مستقل رکنیت دیے جانے کی حمایت کا اعلان کیا۔ UNGA میں اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم توبگے نے کہا کہ بھارت اپنی نمایاں اقتصادی ترقی اور عالم جنوب میں قیادت کا حامل ہونے کے سبب سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا مستحق ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں ذکر کیے جانے پر جوابی نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت نے ان کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ملک جس کا نظام فوج چلاتی ہو اور عالمی سطح پر جس کی شبیہ دہشت گردی، نشیلی اشیاء کی تجارت اور بین ملکی جرائم کے مرتکب کے طور پر ہو، اس نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر حملے کی جسارت کی ہے۔ UNGA میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی سفارتکار بھاویکا منگلا نند نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک لمبے عرصے سے اپنے پڑوسیوں کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ اس نے بھارت کی پارلیمنٹ، بھارت کی اقتصادی راجدھانی ممبئی، مارکیٹ کے مقامات اور مقدس مقامات کی طرف سے جانے والے راستوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ فہرست طویل ہے۔ اگر ایسا کوئی ملک کسی بھی جگہ کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو وہ بدترین منافقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر کے انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کا لگاتار استعمال کر رہا ہے، جو بھارت کا ایک لازمی اور اٹوٹ حصہ ہے۔ باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی گارنٹی، اسٹیٹ ہوڈ کا حق، جموں کشمیر کو پورن راجیہ کا درجہ، مہیلا سمان ہمارا حق، پریوار کی مہیلا مکھیا کو 3000 روپے مہینہ، اچھی صحت ہمارا حق، 25 لاکھ کا سواستھ بیمہ، کشمیری پنڈتوں کا حق، ریہیبلیٹیشن کے لیے منموہن سنگھ جی کی یوجنا لاگو ہوگی، OBC کا حق، سمویدھان کے تحت ہر OBC کو پورا حق، نوکری کا حق، 1 لاکھ خالی سرکاری پد بھریں گے، اناج کا حق، پریوار کے ہر سدسیہ کو 11 کلو راشن۔ کانگریس کو ووٹ دیں۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔
जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की तारीख नजदीक आने के साथ साथ यूटी के 40 असेंबली हलकों में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। इन सभी असेंबली हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और आजाद उम्मीदवार चुनावी जलसे जुलूसों और रोड शोज का एहतमाम करके अपना मंशूर लोगों के सामने रखकर उनसे वोट मांग रहे हैं। इस मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। इससे पहले यूटी के दीगर असेंबली हलकों में 2 मरहलों में हुई वोटिंग में भारी तादाद में वोटरों ने शिरकत की। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के ख्वाह है। वो आज जम्मू में बीजेपी की तरफ से मुनक्किदा एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जारी असेंबली इंतखाबात के मुनक्किदा 2 मराहिल में वोटरों की भारी शिरकत इस बात का गम्माज है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत में पुख्ता यकीन रखते हैं और वो खित्ते की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके मुसल्लह अफवाज को उनका हक दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह मामला 4 दहाइयों तक लटकाए रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को तकसीम करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। वो आज कुंजर गुलमर्ग में पार्टी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह की रैली में शिरकत के दौरान लोगों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो यहां के लोगों की उमंगों के मुताबिक काम कर सकती है। उन्होंने वोटरों से कहा कि वो पार्टी उम्मीदवार फारूक अहमद शाह को कामयाब बनाकर हल्के की तरक्की में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा तरक्की, खुशहाली और अवामी मफादात के फैसलों की मुतमन्नी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज लोलाब में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है और सरकार इस पर काबू पाने में नाकाम रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर यूटी की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाएं। कुपवाड़ा में नामजद पार्टी उम्मीदवार के हक में चुनाव रैली में शिरकत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक काम करती आई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अवामी मफादात में ही फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी के बारामूला असेंबली हल्के के उम्मीदवार इकबाल मीर ने आज एक चुनावी रैली का इनेकाद किया। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान सलमान सौस भी उनके हमरा थे। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों लीडरान ने कहा कि इस हल्के के लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी कोशिश जारी रखेगी। उन्होंने वोटरों से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हंदवाड़ा में एक रोड शो का एहतमाम किया गया। पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने रोड शो की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में अपना रोल अदा करें। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर अमूर के इंचार्ज तारुन चुग ने आज नईद सुंबल में वर्करों के एक इजलास से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अवाम का एतमाद और दिल जीता है। सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि वजीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए अनथक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि यहाँ का अवाम तरक्याती प्रोजेक्टों, चाहे वो सड़क राब्ता हो या रेल राब्ता, से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जिला चुनाव ऑफिसर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने आज गुरेज असेंबली हल्के के लिए पोलिंग पार्टियों को बांडीपोरा से रवाना किया। इस हल्के में भी 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कुल 31 पोलिंग पार्टियों को गुरेज के लिए रवाना किया गया। इनके अलावा 30 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 35 रिजर्व स्टाफ को भी इस हल्के की तरफ रवाना किया गया। जिला चुनाव ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि वोटरों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल वीके बिरदी ने कहा है कि होने वाले इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कुलगाम में आज हुई झड़प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात इंतखाबी अमल पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं और लोग बिला किसी खौफ के अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप जानते हैं शुमाली कश्मीर में जो है तीसरे चरण का जो चुनाव है वो डेजिग्नेटेड है अगले कुछ दिनों में, तो वहाँ पे काफ़ी मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और काफ़ी जम्मू कश्मीर पुलिस ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में पेरिस 2024 पैरालंपिक्स तीर अंदाजी में तांबे के मेडल हासिल करने वाले राकेश कुमार और शीतल देवी के साथ मुलाकात की। एलजी ने दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए एलजी ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में काबिल सराहना खेल का मुजाहिरा करते हुए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। अड़ीगाम कुलगाम में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर हिफाजती अमले ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। गोलियों के तबादले में 2 मिलिटेंट हलाक और हिफाजती अमले के 5 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को बादामी बाग के कंटोनमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिक्किम सोरा में आज एंडोक्राइन अपडेट नामी एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया और सिक्किम के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किद इस एकेडमिक इवेंट में मुल्क के नामवर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने शिरकत की। इस मौके पर नामवर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता बजाज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात के इनेकाद से नई नई तकनीकों की जानकारी हासिल होती है। सिक्किम के डायरेक्टर प्रोफेसर एम अशरफ गनाई भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। हिंदी दिवस के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी कौमी जुबान है और हमें इसके तई संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। तकरीब के दौरान डॉक्टर मोहम्मद याकूब और तैयबा आलम ने मकालात पेश किए। इसके अलावा कई निजी स्कूली बच्चों को एजाजात से नवाजा गया। तकरीब पर सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी हरविंद्र कौर और एडिशनल सेक्रेटरी संजीव राणा भी मौजूद रहे। आलमी रैबीज डे के मौके पर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए तदाबीर और एहतियात बरतने की जरूरत को उजागर किया गया। वर्ल्ड रैबीज डे के इस साल का मौजू है ब्रेकिंग रैबीज बाउंड्रीज। वादा रहे ये दिन हर साल 28 सितंबर को लुई पास्चर की याद में मनाया जाता है जिसने एंटी रैबीज वैक्सीन को ईजाद किया था। डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं ने आज मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मनशियात पर काबू पाने, जिले में नशा मुक्त पंचायत कायम करने और दीगर कई अहम मामलात पर गौर खौज किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में अगले महीने से शुरू होने वाली लेजेंड्स क्रिकेट लीग के आसन इनकाद और इंतजामात के हवाले से एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इकदाम करें। उन्होंने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो स्टेडियम के गिरदोनवाह में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। उन्होंने पीने का साफ पानी और बिला खलल बिजली की दस्तयाबी पर जोर दिया। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने जम्मू कश्मीर में गैर मनसूबाबंद तरीके से कस्बों और शहरों की तौसी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकाम से जम्मू कश्मीर में तमाम शहरों और कस्बों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और ज़राई अराजी को तामीराती मकसद के लिए इस्तेमाल न करने पर जोर दिया है। जीसीसी ने हाल ही में इस मुनासिबत से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुतल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद करने और इस हवाले से यूटी में इकदाम करने को खुश आयंद करार दिया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।